Assalamu alaikum. This is my message for my overseas Pakistanis. I know it's very hurtful that you have been scammed by these bastards like Sabah Haman vlogs and their relatives. So I have a solution for you. In Pakistan, we have a very prestigious department that is known as Federal Investigation Authority. So if you have the proof and receipts of all those things that you have been sent to Pakistan in the form of money, definitely you have sent the money. And if you have the receipts and the proof that these money had been sent by you and the people to whom you have sent, if you can show and provide the proof to FIA, Federal Investigation Authority, so they can take action against these people. Because if you have the proof, you can provide them and you can ask them, and also you can show them the videos and the links that on which that you have been promised that your money will be gone to such departments, but they were gone in other things, like they were used in their own homes. So if you have the receipts, if you have the proofs, then you can contact via email or other resources to Pakistan Federal Investigation Authority, and you can provide all the credentials, all the things, and also you can provide the links of the videos in which you were promised that your money will be spent here and how you were scammed. And if you have the recordings of your calls or anything, you can also provide all those things to Federal Investigation Bureau. And inshallah ta'ala, your money will be recovered, and also they will scum these idiots. Inshallah ta'ala, their channel will be removed, and they will be behind the bars. Inshallah ta'ala soon. So please, all those people, it's my request that please don't be upset and also don't sit quietly. Okay, now you have a channel like Sonu Ki Dunia, who is doing a very really wonderful job. She is really a brave woman. I really want to salute her. I really want to salute Rubina, that she is also raising her voice. And please come on and be our voices. Okay, if you don't want to show your identity to us, don't worry, but you can contact to Federal Investigation Authority directly. You can send all the proofs to them, and inshallah ta'ala, not only your money will be recovered, but all these people will be behind bars soon, and their channel will be removed. Because in Pakistan now, when I am investigating all these things, I have contacted many people, and these people are literally, everyone is saying that these are the scammers of Pakistan, and they are scamming each and everyone. Not only you people, there are many people who have been scammed and don't have any resources in which they can contact to people like Sonu Ki Dunia or Rubina, etc. So please be our voices, and please don't sit quietly and do something. Inshallah Ta'ala, with the help of Allah Almighty and with the help of Sonu Ki Dunia and Rubina, will be able to scum these bastards. Inshallah Ta'ala. Sister, یہ ہے ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی. ایف آئی اے ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے جو کرائمز ہوتے ہیں جو کہ آن لائن اسکیم یا اس طرح کے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں, یہ اس طرح کی چیزوں کو ساتھ ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو سسٹر آپ پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے پاکستان کے اندر جب بڑے بڑے مگرمچھ نہیں بخشے جاتے تو یہ کون ہیں چیزیں. اور پلیز آپ لوگ پریشان نہ ہو. ہمارے پاکستان میں اگر یہ جو بڑے بڑے سیاستدان, جو بڑے بڑے لوگ, جب ان کے اسکیمز نہیں جو چھپے رہ سکتے, تو یہ لوگ کیا چیز ہیں. ٹھیک ہے, لیکن صرف کیا ہے, تھوڑا سا ہمت دکھانے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا آگے آنے کی ضرورت ہے. پلیز بی آر وائسز, پلیز. بیکاز آپ لوگوں کی سے ہے, یو آر اوورسیز پاکستانی, پیپل ول لسن ٹو یو, دیز اتھارٹیز ول لسن ٹو یو, دے ہیو ریسپیکٹ فار یو. بیکاز آپ لوگ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ ایک کرتے ہو, آپ ریونیو بیچتے ہو, پاکستان کو بہت فائدہ ہوتا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے پاکستان کا. پلیز ڈونٹ سٹ کوائٹلی. اف سم تھنگ ہیز ہیپن ٹو یو, پلیز بی آر وائسز, ریز یور وائس. اٹس یور رائٹ. اٹس ناٹ ایزی ٹو ارن منی ان دس ورلڈ. پیسے کمانا آسان نہیں ہوتا. اور اس طرح کے جو لٹیرے جو بیٹھے ہوئے, جو کہ بیٹھے بٹھائے, ہم یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں, ہم یہاں پہ جو ہے جابس کرتے ہیں, ہم لوگوں کو پتہ ہے نا کہ ایک پیسہ, ایک روپیہ جو ہے نا, اس کی کیا اہمیت ہے. ان لوگوں کو کیا احساس ہو سکتا ہے وہ روپے پیسے کی اہمیت جو کہ حق حلال سے کمایا جاتا ہے. کبھی حق حلال سے کمایا ہو, پسینے کی بوند زمین پہ گری ہو, تو ان لوگوں کا احساس ہو. ہم یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں, ہم راتوں کو جاگ کے پڑھتے ہیں, اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں ہم لوگ. کیوں؟ کیونکہ ہمارا مستقبل بہتر ہو, ہم اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر سکیں. اور ہمارے جو ہے نا وہ جو ہے پیسے کمائے ہوئے یہ الو کے پٹھے جو ہے نا, یہ لوٹ کے اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں. Assalamu alaikum, and this is my message again for the overseas Pakistanis. If you go to Aslam Khan's channel, you have to open his channel via mobile phone, because if you open that via laptop, that then you will be unable to see that community tab. If you go from the mobile, if you open his channel and go to community, you can see that yesterday he was posting videos that were generated by Sabah's uncles. Okay,
and those videos contained lots of abusive language, and those language that you cannot hear in one go, because all those things were really below the belt, really below the belt. So kindly go to his channel and take screenshots and see by yourself that on his channel logo, above those videos he is saying that it's a family vlogging channel, and behind and beneath that he is uploading that abusive content that is created by his own relatives, just for Sonu Ki Dunia, and also for Aisha Canada Wali, and also for Rubina. These three women, and these are iron ladies. They are really helping all those people. They are really raising their voice for people like you, for the people like us. Please also go to his channel and also report him, also do whatever you want. If you go to FIA, kindly take screenshots of his channel also, his community also, and also take those screenshots also to them. And really, if anyone from you want to know how to report his channel, Sabayabas vlogs or any other channel, I can help you. I can provide you the way in which you can report the channel via laptop, and in which you have to choose some kind of videos in which they have posted violent content or anything like that. Then you report that thing. Okay. So if anyone want to know how what's the procedure, I can provide you the procedure. Kindly report those channels. Okay. And also do go to Aslam Khan's vlog community and see what he is posting there. These are the women of our Pakistan, and we cannot tolerate this kind of thing. They know that they are doing this in Urdu language, and they know that YouTube cannot take action against them. Okay. But I know that if the any big channel, they cannot update anything like qatl, anything like murder, or anything like any abusive thing, and they are continuously giving their thumbnails in the form of abuse, in the form of harassment and violent content. So please go to FIA, please provide this channel, provide their content, please, because now they are crossing their limits, and it's now our time to stand for them, to stand for these ladies, for our Pakistani community, so we can make our country a safe country. जी, थंबनेल आपने देख लिया। आज हम फिर उन्हीं कुत्तों पे बात करने वाले हैं जो टाइम पास की पैदावार है। आज आपको सोनू सिस्टर कम बोलते हुए नजर आएंगी और ओवरसीज बहनें ज्यादा बोलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इन सब भाइयों ने, इन सब खारिश खाए हुए कुत्तों ने एक औरत की नहीं, सब औरतों की तहजील की है। हर औरत ने आवाज उठाई है। जिन औरतों ने इनको पैसा भेजा, इनके घर का राशन, इनके घर में कपड़े, सदका खैरात, इन्होंने उनको भी गालियों से नवाजा, उनसे माल हड़प करने के बाद उनको किया ब्लॉक, उनकी किसी बात का नहीं दिया जवाब। कल असलम खान ने एक कम्युनिटी क्या शेयर की, सारी बहनें एक्शन में आ गई। सबसे पहले मैं उन सारी बहनों को सल्यूट पेश करती हूँ जिन्होंने हिम्मत दिखाई और ऐसे हिजड़े मसल्ली, शीदे मसल्ली की नजायज और शीदे तेली की नजायज औलाद को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो मुंह तोड़ जवाब क्या है आप सुने, फिर उसके बाद मैं अगला प्रोसीजर बताती हूँ क्या आपने करना है क्या नहीं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम रुबीना सिस्टर, कैसे हो आप? बच्चे लोग कैसे, खुर्रम भाई कैसे? ये जो हरामी है ना, ये भड़वे की औलाद है, ये मेरी आवाज़ भी लगाना आप, तो ये बोलना कि ईरान से भी आवाज़ उठी है। ये हरामी की औलाद है। वो असलम खान भी इन लोग का 4 भड़वे इन लोग, इसकी माँ ने पैदा किए 4 भड़वे। वो नाचने वाली थी इसकी माँ ना, इसके लिए ये औरत लोग को गाली देता है। हरामी, इसको शर्म नहीं आती है? हाँ, औरत उसकी सो रही है, वीडियो बनाता है, वो उसकी सास वहाँ पे खोल के बैठी है, वीडियो बनाता है, उसका वो भड़वा क्या है, वो ससुर, इसको शर्म नहीं आती है? रात में सोता है, सुबह में निकालता है बच्चे, शर्म नहीं आती इन लोग को? उसका कौन सा चाचा है भड़वा, उसका कौन सा चैनल है? मैंने नहीं देखी ये सब। अभी आपकी आवाज़ में सुने, आपका चैनल देखी, मेरे को यहाँ पे 2 बज रहा है रात के।
ईरान में। ये मेरी वॉइस देना, सोनी सिस्टर को भी देना तो लगाएगी वहाँ पे, उसको बोलना कि ईरान से भी आवाज़ उठी है ये मादर चौथ के लिए। यही आवाज़ देना कि हम लोग भी यहाँ से इसको गाली दे रहे हैं। खुर्रम भाई अपना ख्याल रखो, बच्चे लोग का, रूबीना सिस्टर का भी ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। इसको शर्म नहीं आती है? जब देखो जब ये ड्रामा बाजी करता रहता है, शर्म नहीं आती इसको, हरामी की औलाद को। ऐसा वो क्या बोल रहा है, उसका चाचा बोल रहा है कि नलका लगाए, मस्जिद बनाए, कि अपने जेब से बनाया? ये हरामी चोर, ये चोर है, चोर चोर है ये वहाँ का चोर है। इसका नाम चोर रखना। भड़वे को शर्म नहीं आती है? मस्जिद बनाया, ये बनाया, वो बनाया, कि अपने जेब से बनाया है? ये तो भीख मांग के खाता था, इसके घर जाके कटोरा लेके जाता था, थोड़ा सालन दे दो, थोड़ी रोटी दे दो। ये सब हम लोग ने देखे तो अभी 3-4 साल पहले। शर्म नहीं आती इसको? नहीं, तुम लोग को बोल रहे हैं ना, तुम लोग के हाथ से, इन लोग के घर में मर्द नहीं है कि फोन इन लोग के हाथ से ले लो, तो ये इसको ये मर्द चाहिए। तुम लोग के हाथ से फोन नहीं चाहिए रूबीना सिस्टर, ये तुम लोग का मर्द इन लोग को चाहिए, इन लोग को औरत लोग को, क्योंकि मर्द नहीं है इन लोग के घर में, सब हिजड़े लोग हैं, इसके लिए बोल रहा है इसका चाचा। उसको बोल ठीक है मैं भेजती हूँ, हम लोग कसाई लोग हैं, तेरे को भेजते हैं यहाँ से गोश्त तेरी औरत लोग के लिए। कितने इन लोग हरामी लोग हैं, कितने इन लोग चोर है। यहाँ पे ईरान में जो जो ये चैनल देख रहा था, हम लोग सब लोग यही उसको गाली लिख के भेजे यहाँ से। शर्म नहीं आती है चोर को? ये मादर चोद बोल रहा है तुम्हारे बारे में रूबीना सिस्टर के, तुम लोग भाई बहन नहीं थे और कुछ चलता था, उसको बोलना, ये बोलना भड़वा तुम वहाँ पे दलाली कर रहा था हम लोग के बीच में। हाँ, क्यों? जब सबा वो 3 यार उसके आके 2 निकाल के गए अपने गांड से, 2 बच्चे निकाल के गए, जब तू कहाँ था? उसका चाचा वहाँ पे नहीं था ना देखने के लिए कि सबा क्या कर रही है? जो भी आता है इसके घर में बराबर इन लोग की बजा के जाता है। उसको ये मेरी ये वॉइस भी चलाना रूबीना सिस्टर, देना सोनू सिस्टर को। ये हरामी बोल रहा है सोनू सिस्टर के बारे में कि इसका मेमा ऐसा है वैसा है ना, ये हरामी। उसको बोलना तेरी माँ का कितना किलो का है, तेरे को चाहिए तो आ जा, तेरे को भी बना के देगी बराबर से वैसे ही। सोनू सिस्टर, इन लोग बहुत हरामी लोग हैं, इन लोग चोर है, चोर है, इन लोग पाकिस्तान के चोर है। इन लोग को बराबर करना चाहिए। ईरान में होता है तो बराबर इन लोग की। अभी ये मैं वॉइस पे जो भेज रही हूँ अभी आप चला नहीं सकते, क्योंकि गाली दे रही हूँ मैं उन लोग के लिए। ये भड़वे लोग ईरान में होते तो इन लोग की बराबर से गांड बजा देते थे, लेकिन पाकिस्तान में है। ये उम्रा करने गया था, ये उम्रा करने नहीं गया था, वहाँ पे अपनी सबा को लेके गया था, वो उसकी माँ बुड्ढी को लेके गया था, वहाँ पे काम कर रहा था होटल में। उन लोग को वहाँ पे लेके गया था, डॉलर कमा रहा था होटल में भड़वा। यही आवाज़ तुम लगाना वहाँ पे चैनल पे, ये चैनल बना के मेरी आवाज़ लगाना, बोलना कि ईरान से भी आवाज़ उठी है। यहाँ पे पूरा हम लोग 50 लोग, 50 लोग यहाँ से सब लोग मेरे को बोला आपको उर्दू आती बराबर में, आप बात करो हम लोग की जगह। इतना हरामी भी गैरत है, इतना हरामी भी गैरत है कि क्या मैं बोलूँ। वो बुढ़ा उसका बाप है जो भड़वा घूमता रहता है इधर उधर, नमाज के टाइम बोलता है नमाज पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। जो अपनी वो 4 औलाद को देख, कहाँ से तूने निकाला है कि इसका बाप बन के बैठा है तू? अब उसकी माँ बुड्ढी बात कर रही है, उसको बोल बुड्ढी जाके मरने की फिक्र कर। बोलते हैं ना इंडिया में बुड्ढी क्या बोलते हैं, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, अभी ये हो गई है, भूल गई ना? उस सबा हरामी के सुअर की जैसे उसका मुंह बना रहता है, जब भी देखो उसकी बना है। जा उसको बोल अपनी भाभी की वीडियो उसके हाथ से ले कैमरा, वो जो खुजा रही है कैमरा उसके हाथ में, रोटी पका रही है कैमरा उसके हाथ में है। बच्चे लाइन से बैठे जैसे कि फकीर के बच्चे बैठे रहते हैं। सुमैया आओ यहाँ पे, वो बुशरा है कौन है, वो बच्चे लोग को बुलाता रहता, आओ ना, आओ जल्दी जल्दी नाश्ता करो। भड़वा बुड्ढा, उसको शर्म नहीं आती है? अभी ये सब बात उसके भाई को लेके आया बात करने के लिए।
रुबीना सिस्टर, मैं ईरानी में भी बात करके भेज रही हूँ, वो भी आवाज़ लगाना, आप ईरानी की भी आवाज़ लगाना जो मैं बोल रही हूँ, ईरानी में बोल रही हूँ। ये जो हरामी की औलाद है ना, हरामी की औलाद अहमद और उसके 3 भाई, क्या बोलते हैं ईरानी में, हम लोग तो यहाँ पे बोलते हैं उसको दलाल। इन लोग जो औरत के क्या बोलते, कमाटी पूरा होता है ना, इन लोग वहीं बैठते हैं अपने गेट पे, जो भी आता है ना उन लोग को अंदर कराते हैं, पैसा लेते हैं, अंदर जाओ जाओ अंदर जाओ, मेरी भाभी है, मेरी औरत है, मेरी बहन है, सब लोग ईरानी में। अभी मैं ईरानी में बोलूँगी, ये भी आवाज़ आप लगाना. این کثافت حرومزاده خجالت نمیکشه، خار مادرش همه میان میگاین، بعدم میگه نه ما مسلمونم، ما رفتم مکه اومدم، ما اینجوری بودم اجوری بودم. इसको शर्म भी नहीं है. یہ دو کنجر کون سے ہیں؟ یہ گالیاں بک رہے ہیں عورتوں کو، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی ماں بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ماں بھی کنجری ہوگی، ان کی بہن بھی ہے وہ بھی کنجری ہوگی، اس لیے ان کو کنجریاں نظر ان کے گھر میں کنجریاں بستی ہیں تو دوسری عورتیں بھی کنجریاں ہی نظر آتی ہیں بے غیرتوں کو. لعنت ایسی کنجروں کی شکلوں پر، بے غیرت، بات کرنے کی تہذیب نہیں ہے، کتنی گندی گندی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ، ان کو شرم نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ ہے ہی کوٹھے کی پیدائش، تو ان کو کہاں سے شرم آئے گی؟ ہر ایک کی عزت اچھالتے ہیں یہ لوگ بے غیرت. ان کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. اب انہوں نے اتنی نیچ حرکتیں کرنی شروع کر دی کہ عورتوں کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے. پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے کہ خود کیا ہے. اور دوسرا کیا کہتے ہیں، یہ ہے مخلص، وہ میرے سے فون کر کر کے بھیک مانگتا تھا. اب ان لوگوں نے اتنا پریشان کر دیا ہے، ہمیں بدنام کرنا شروع کر دیا ہے. تو ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ میں خود ایک اخبار کی ایگزیکٹو ایڈیٹر ہوں. میں ان کو اخبار میں چھاپ کے اتنا بدنام کروں گی، اتنا بدنام کروں گی کہ ساری زندگی گھٹنوں میں سر دیکھ کے روئیں گے کہ ہم کتنا ان لوگوں نے آسان سمجھا تھا کہ کسی کی عورت کی اس طرح عزت اتاری جائے. اتنا گند بکتے ہیں، اتنا گند بکتے ہیں کہ جو بے غیرت سے بغیرت بھی ہوگا نا، وہ بھی منہ سے اتنا گند نہیں بکے گا. یہ تو لگتا ہے کہ یہ کسی حرام زادی ماں کی اولاد ہے، وہ گندی ماں کی اولاد ہے جو ٹگے ٹگے پہ بکتی ہوگی، اس ماں کی اولاد ہے یہ. اس لیے ان کو نہ شرم ہے نہ حیا ہے. یہ سمجھتے کہ سب ان کی ماؤں جیسی ہیں، کہ جیسے ان کی ماں دھندا کرتی ہیں دوسری بھی اسی طرح کی ہوں گی. تو اپنی زبان پہ لگام دے دیں، نہیں تو میں ان کے ساتھ اتنا برا پیش آؤں گی کہ سرخیوں میں ان کا نام دوں گی، سب کا، پوری فیملی کا، عورتوں سمیت نام دوں گی اچھی طرح. ٹھیک ہے، اوکے. ہاں جی، السلام علیکم سسٹر، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہے. میں فائزہ بات کر رہی ہوں. میں حیران ہو گئی ہوں، دیکھو اتنی ننگی زبان، انہوں نے اتنی ننگی زبان بولی، اور کیا کیا بولا ہوا ہے، بکواس کیا، تھلا تو یہ تو وہ ہیں بے غیرت کے بچے، کتے کے بچے. میرے سامنے ہوتا نا، میں تو پورا مردوں کی طرح عورت ہوں، ایسا اٹھا اٹھا کے پٹکیاں دوں نا، اس کو سیدھا کر دوں بے غیرت کی اولاد کو، سمجھے، کیونکہ میری بیک مضبوط ہے. ماشاء اللہ میرا ایک بھانجا میجر ہے، دوسرا بھانجا آرمی میں، وہ بھی بڑی پوسٹ پہ ہے. اس کو تو میں سیدھا کر دوں. دو جو دلے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل دلوں جیسی شکل ہے، لگتا ہے ابھی بیٹیوں کو بیچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بے غیرت کی اولادیں. ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ میسیج ایک کی بہن بیٹی ہے، اس کے لیے ہم چھوڑ رہے ہیں، اپنی بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں ان کی، کیا وہ بیچ کے آگے ہوئے ہیں ہیرا منڈی میں؟ ٹھیک ہے. میں تو حیران ہو گئی ہوں سن کے. اور یہ احمد جو بڑا شریف بنا پھر رہا ہے بونا 4 گٹ کا، تو یہ کیوں تمہارے خلاف ہو گیا؟ یہ تو بڑے ایکٹنگ کرتا تھا، میری بہن میری بہن میری بہن. اب اس کو موت آ گئی ہوئی ہے. اب کیا یہ اس کے کانوں میں کیا گھس گیا ہوا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنی ننگی بکواس دونوں آدمی کر رہے ہیں. وہ ہیں کون؟ اللہ معافی دے. توبہ استغفار. لگ رہا ہے جھاڑو پوچھا لگانے والے ہیں، بد شکل کہیں کے، بے غیرت. السلام علیکم فرینڈز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیر و خیریت سے ہوں گے. شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. تھینک یو سو مچ جو اس چینل پہ نیا ہے، اس فیملی کا حصہ بنے. تہہ دل سے ان کو اس فیملی میں ویلکم کہتی ہوں. ریکویسٹ کرتی ہوں جو آج اس چینل پہ آئے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل کے آپشن کے ساتھ پریس کر لیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن فوراً سے پہلے میرے بہن بھائیوں تک پہنچ سکے. جی تھینک یو سو مچ کہ کل کی ویڈیو کو آپ نے اتنا شیئر کیا، اتنے پیارے پیارے کمنٹ آئے کہ آپ کے کمنٹوں نے مجھے مزید موٹیویٹ کیا. اور سونو کی دنیا اور آپ کی سونو سسٹر اپنے اللہ کے علاوہ کسی کتے سے نہیں ڈرتی. پھر یہ کتے جو ٹائم پاس کی پیداوار ہیں، کیا مطلب کیا کیا ان کی ایک
ओवरसीज बहन ने अपनी वॉइस दी, जिसने पैसा इनको भेजा, वो पैसे जो इसने कोसर और इरफान के चैनल पे मंगवा के अपने अपाहज भांजी भांजे दिखा के जिनके नाम पे भीख खाई, अगर उसके लिए बाहर ओवरसीज बहन भाइयों ने एफर्ट किया, आवाज उठाई, तो ये जलील कुत्ता, औरतों की कमाई खाने वाला, सदका खैरात खाने वाला, यतीमों मस्कीनों का हक खाने वाला, इसने वीडियो बना डाली और उस पे फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे इन्होंने, असलम खान ने वो गंदी वॉइस, वो कम्युनिटी इतनी शेयर की कि हर बहन एक्शन में आ गई। हर बहन ने कहा कि ये एक औरत को गाल नहीं, ये खुद गंदी माँ का बच्चा है, गंदे हराम ज़ादे हैं, ये टाइम पास की पैदावार है, इसलिए इनको हर औरत ऐसी लगती है। रिएक्शन चैनल वालों को वजूद में आए हुए भी अरसा कितना हुआ है कि इन व्लॉगरों की चीखें निकल गई। अगर ये गंदा धंधा ना करें, फैमिली व्लॉगिंग ऐसी होती है, यतीमों का हक खाना, अगर कोई इनको पैसे दे के कमेंट करता है या कॉल करता है कि भाई जो हमने पैसा भेजा वो आपने गरीबों तक पहुंचाया, उसका कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिया, नलके नहीं लगवाए, आगे से ही उनके साथ गंदी जुबान बोलते हैं, फिर उनको ये ब्लॉक कर देते हैं। ये इनका धंधा है। अपनी एक वीडियो में जब इस कुत्ते अहमददीन बलोच ने माफी मांगी थी और कहा कि मैंने 2 से 4 महीने काम ये किया था, पैसा आया था, पर लोग किसी हाल में नहीं जीने देते, इसने खुद एक्सेप्ट किया। अजहर, आपको पता है, पौधे जो चैरिटी के नाम पे लोगों ने पौधे डोनेट किए थे, वो अहमद के मड हाउस में पौधे लगे थे, ना के रोड पे लगे जाके पौधे, ना के उन बस्तियों में पौधे लगे जहां पौधों की जरूरत है। ये सब मिले जुले हैं। ये सदका खैरात के नाम पे ओवरसीज बहन भाइयों को चे बनाते हैं, बुद्धू बनाते हैं, और अपने ही घर के माजूर बच्चों को दिखा के, अपनी बीवियों को दिखा के, अपने घर की गुर्बत दिखा के ये उनसे मदद लेते हैं, तोड़ों के तोड़े आते हैं। पुरानी आप इनकी वीडियो का अगर विजिट करें, आपको इनके असली चेहरे सामने नजर आएंगे। रिएक्शन वालों की इन कुत्तों के साथ कोई दुश्मनी नहीं। जब ये कुत्ते धंधे को प्रमोट करेंगे, डिलीवरी को, लेबर पेन को, जो हमारे इस्लाम में बिल्कुल मना है, फिर हम में और गैर मुबालिक में क्या फर्क रह गया अगर हमने अपनी न्यू जनरेशन को, अपनी बच्चियों को अनमैरिड होते हुए लेबर पेन दिखानी है, डिलीवरियां दिखानी है, बुढ़ी ओल्ड औरतों के पेट उठाए हुए दिखाने हैं। ये मर्द अपनी बीवियों को बच्चे तो पैदा करवा सकते हैं, कैमरा पकड़ के, मोबाइल पकड़ के अपनी औरतों को आगे पीछे ऊपर नीचे से एक्सपोज तो कर सकते हैं, पर ये मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते। अगर हमने इस चीज के लिए मना किया, हमने इस चीज के लिए आवाज उठाई, तो क्या ये जुर्म है? क्या हमारा फर्ज नहीं? हम अपने मुल्क की इज्जत के लिए, हम अपने मुल्क की सलामती के लिए, हम अपनी नस्लों के लिए ऐसे धंधाखोर जिनके नाम है फैमिली व्लॉगिंग चैनल, पर मैं कहती हूँ उनको कट करके रखना चाहिए, धंधा सिखाने वाले चैनल। असलम खान का व्लॉगिंग चैनल है, उसकी वाइफ, उसकी बच्चियां सब उस चैनल पे, उसकी माँ, उसकी बहनें सब उस चैनल पे अपने जिस्म की, अपने हर जिस्म के पार्ट्स की नुमाइश करते हैं, फिर उसके बाद उधर से ओवरसीज बहन भाइयों को लूटते हैं, फिर उसी चैनल पे ये बैड लैंग्वेज, गंदी लैंग्वेज की कम्युनिटी शेयर की गई। क्या ये फैमिली व्लॉगिंग के चैनल पे ऐसी कम्युनिटियां शेयर करनी चाहिए? जिस औरत के जिस्म से ये खुद निकले, जिस औरत ने इनको पैदा किया, इनको माशरे में मर्द का रुतबा दिया, इन्होंने उसी मर्द के, उसी औरत के जिस्मों को ये रिएक्शन बना के बेनकाब किया, उनके उन पार्ट्स को इन्होंने हाईलाइट किया, उन पे इन्होंने बात की जिसमें से इन्होंने खुद भी बच्चे पैदा करवाए हैं। क्या ये जिसको फीता नाम देते हैं, जिस चीज़ का नाम इन्होंने फीता रखा है, क्या इनकी औरतों के फीते नहीं हैं? इसकी बुढ़ी कॉल गर्ल माँ, हुक्का पीने वाली, जो इतने नाजायज बच्चे पैदा करके 10-12 उसने छोड़े हैं, क्या उसके बुढ़े फीते में अभी भी करंट बाकी है? जो हुकियां चुक के कभी उधर फिरती है, कभी इधर फिरती है, और अपने बच्चों को प्रमोट करती है कि ओ हराम की औलादो, मैंने तुम्हें पैदा किया क्या इस दिन के लिए? औरत के फीते पे थुको, औरत के फीते को गाली दो, फिर उसे औरत के फीते की एक्सपोजिंग करके अपनी औरतों नूं वहा के उन्हां दे
ਬਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, मतलब मैं क्या कहूँ कि उनकी जिसके इसने अल्फाज यूज किए, बूब्स जिनको ये बोल रहा था, खा के क्या ये पैसा नहीं कमाते? क्या इनकी घर की औरतें सारी खुसरियां हैं? क्या उनको वो फीते नहीं लगे हुए, उनको वो भूप्स नहीं लगे हुए? और इतनी बेशर्मी से कम्युनिटियाँ शेयर की जाती हैं। ये फैमिली नाम के चैनलों पे सीधा सीधा धंधा नहीं हो रहा, और हम इस धंधे को प्रमोट नहीं कर रहे। हम इस धंधे में अपनी हक हलाल की कमाई का पैसा नहीं दे रहे। क्या हम अपनी बेटियों को, अपने बेटों को इन जैसा बगैरत और अपनी बेटियों को क्या धंधा सिखा रहे हैं? जो इन व्लॉगरों को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए हमने अपने घरों के दरवाजे खोले हैं। नहीं बहन भाइयों, जागो, आप मुसलमान हैं, हमने लौट के अपने रब की तरफ जाना है, हमने भी वहां जाके जवाब देना है। हमारी कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ हमारी दुश्मनी है इनके फेक कंटेंट पे। हमारी दुश्मनी है ये जो यतीमों मस्कीनों के नाम पे पैसा लेके खाते हैं, उस पे हम आवाज उठाएंगे। ये 101 गाली दे, क्योंकि ये मर्द नहीं, ये हिजड़े हैं। ये औरत को गाली दे के समझते हैं कि हम डर जाएंगे। इसने रुबीना की बेटी को क्या नाजायज नहीं कहा, इसने रुबीना को धंधे वाली नहीं कहा, इसने आयशा कैनेडा वाली को धंधे वाली नहीं कहा। और अब जो ये कम्युनिटियां असलम खान के चैनल पे शेयर हो रही हैं, क्या इसने सब रिएक्शन वालियों पे उंगली नहीं उठाई? ये एक औरत को गाली नहीं, इसके घर की सारी औरतों के ये स्पेयर पार्ट बता रहे हैं, उनके फीतों के साइज बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हम काम नहीं कर सकते। हमारे घर की औरतें ऐसे खेतों में जाती हैं, फिर ऐसे अदमुइयां होके गिर जाती हैं, फिर ओवरसीज बहन भाई अपनी हक हलाल की कमाई भेजते हैं, फिर हम इनके फीते रिपेयर करवाते हैं, फिर ये हमारे साथ बैठ के व्लॉगिंग बनाती हैं। अगर नंबरदार की बात की जाए, प्रूफ के साथ लंदन वाली सिस्टर ने वो वीडियो भेजी जो मैंने चलाई, आप लोगों ने देखी। आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा हो गया है, ये नंबरदार वाला जो ड्रामा? कल खेतों में पकड़ा गया। अगर आप इसके मड हाउस जो जहां से इसने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, इसके पहले वाले व्लॉग जाके देखे, इसी अहमद ने और इसकी कल्लो वाइफ ने इनके घर का सारा चूना शूना जिन्हों डिस्टेम्पर कह के पेश कर रहे सन, उसने वो सारा किया। जब खेतों से बाहर निकला, आपने उसकी स्माइल भी देखी, वो स्माइल कैसे पास करवा रहा था। ये सारा स्क्रिप्टेड फेक काम कर रहे हैं। और उस पर जब आवाज उठाते हैं, हम कहते हैं अपने मुल्क को बदनाम मत करो। तुम व्लॉगरों की वजह से हमारी आउट ऑफ कंट्रियों में रिस्पेक्ट नहीं होती, हमारे पासपोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं होती, हमें वीजा नहीं मिलता। उस पर ये क्या करते हैं, औरतों को आके गालियां देते हैं, औरतों के फीते, औरतों के बूब्स पे बात करते हैं। क्या ये मर्द हैं? ये मर्द नहीं, ये खुसरे हैं। बड़े बूढ़े कहते थे औरत नु गाली कड्डी जी कंध नु गाली कड्डी। अगर ये इतने मर्द थे, असलम खान तेली की औलाद, आवारा कुत्ता, फिर कम्युनिटियों को डिलीट क्यों किया? थंबनेल के बगैर अब कम्युनिटियां क्यों शेयर की जा रही हैं? क्या ये अपना धंधा नहीं चमका रहे? इनको एक साइड से ये माफी मांगते हैं, कलमे के वास्ते देते हैं, दूसरी साइडों से ये औरत की तहजील करते हैं। मैं सल्यूट करती हूँ अपनी ओवरसीज बहनों को जिन्होंने वॉइस भेजी, और मैं सल्यूट करती हूँ अपनी उस बहन को जिन्होंने इंग्लिश में यूट्यूब वालों को समझाने की कोशिश की और ओवरसीज बहन भाइयों को समझाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी पाकिस्तानी आवाम जो पढ़ी लिखी है, जो शौर रखती है, उनको इन मैसेज की समझ आएगी, और वो इस मैसेज को, इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि इस मुल्क को ऐसे नाजायज बच्चों से, ऐसे नाजायज कुत्तों से और ऐसे धंधा करने वाले व्लॉगरों से सेफ रखेंगे। आए इस जहाद का हिस्सा बने, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हमारी नस्लें ऐसा धंधा ना सीख सके। वीडियो बहुत लंबी है, कहने को बहुत कुछ है, पर कहते हैं ना, जब कुत्ते की या कीड़े की मौत आती है, काकरूच की मौत आती है, कुत्ते की मौत आती है, तो वो रोड की तरफ भागता है ताकि वो किसी गाड़ी में लगे और उसकी डेथ हो। जैसे अल्लाह ने इनको इज्जत दी, अल्लाह ने इनको पेट भर खाना दिया, अल्लाह ने इनकी मदद मदाद भी की, पर कहते हैं ना, जैसे कुत्ते को खीर नहीं पचती, ऐसे इंसान को फेम और पैसा नहीं पचता। मसाला, नमक, मिर्च, प्याज खाने वालों को मिल गया चिकन, उनको मिल गए होटलिंग, उनको मिल गए रेस्टोरेंट। अब ये फड़फड़ा रहे हैं, इनके जवाल का टाइम इंशाल्लाह शुरू हो गया है। जैसे मेरी ओवरसीज बहनों ने आवाज़ उठाई है, जैसे ओवरसीज बहनों ने मैसेज किए हैं
यूट्यूब वालों को, ये वॉइस मैसेज यूट्यूब वालों के लिए स्पेशल थे, हमारी ओवरसीज बहनों के लिए स्पेशल थे। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, असलम खान का चैनल, अहमद का चैनल और जितना भी इसका हरामी टब्बर है, ये कुत्ता खानदान है, नाजायज औरत के नाजायज बच्चे हैं, इसकी माँ को सिर्फ खाना दो, हुक्का दो और शहर शहर घुमाते रहो, वो अपने बच्चों को दाद देती है। देखने वाले या रिएक्शन वाले हरामी नहीं, हरामी है अहमद दीन बलोचों के नाम पे दबा। मैं उन सब बलोचों को भी ये कहती हूँ, ये अपने मसल्ली हैं ये ज़ात के, पर ये बलोचों का नाम आगे लगाते हैं। बलोच सारे होश में आए और ऐसा इनको डंडा दें कि ये सारी ज़िंदगी याद रखें कि बलोची क्या होती है। ये मैं इसलिए अब बात कर रही हूँ, आप देखें एक रानी आराम से मैसेज वॉइस मैसेज आया, उन्होंने ईरानी बोली, और ओवरसीज सिस्टर का मैसेज आया, उन्होंने इंग्लिश बोली। ये भी ज़रा बलोची तो बोल के दिखाएं अगर बलोच है, पर ना ये नहीं बोलेंगे। ये टाइम पास की पैदावार है, ये खुजली वाले गंदे कुत्ते हैं, औरतों की कमाई खाने वाले कुत्ते हैं। हो जो कुत्तों होशियार, ना सोनू डरेगी ना झुकेगी, सोनू का यकीन अपने रब पे कामल है। इंशाल्लाह आज ये बहन जागी हैं। सोनू एक आवाज उठाने वाली थी, सोनू आपके खिलाफ खड़ी थी और खड़ी रहेगी। उसके साथ आज कितनी ओवरसीज बहनों ने राब्ता किया और उन्होंने तुम लोगों की बैंड बजाई। इंशाल्लाह ये काफिला ऐसे ही बढ़ता रहेगा और तुम लोगों का चैनल तो जैसे कहते हैं ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया। अहमद दीन का टब्बर और चैनल भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी बढ़ेंगे। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, तौबा कर लो। और जैसे ये कम्युनिटियाँ शेयर की हैं ना, वर्गलिटी की, धंधे वाली वीडियोस की, ऐसे ही माफ़ी नामे की कम्युनिटियाँ शेयर करो। नहीं तो वो टाइम दूर नहीं जब तुम लोगों को ढोल की तरह ऊपर नीचे आगे पीछे से बजाया जाएगा। कैसा लगा आज का ओवरसीज बहनों का वॉइस मैसेज और सोनू सिस्टर का रिएक्शन? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार आपने ज़रूर करना है। अगर आज का रिएक्शन अच्छा लगा है तो तुन के ते चुक के लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। बहुत ज़्यादा चंगा लगा फिर सोनू दी दुनिया को सब्सक्राइब करके सोनू दी दुनिया के फैमिली मेंबर बन जाए और अपने मुसलमान होने का सबूत दे और इस जहाद में हिस्सा मनाए, क्योंकि ये व्लॉगर नहीं, ये धंधा करने वाले हैं। तो हम मुसलमान हैं, हम अपने पाकिस्तान को गंदा होते हुए कैसे देख सकते हैं? हम अपनी हवा की बेटी को गाली खाता हुआ कैसे देख सकते हैं? आए और बहन भाई सब इस जहाद में शामिल हों और ऐसे धंधाखोरों के चैनलों को बंद करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।